Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired in the two houses on Tuesday, the second day of the second half of the budget session. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Lok Sabha passes supplementary demands for grants for the year 2025-26 and demands for grants for Manipur. Finance Minister announces rupees 500 crore corpus for Manipur to establish a contingency fund. Treasury benches claim unprecedented economic and infrastructural development in the northeastern states. Opposition accuses the government of neglecting the northeast. Discussion on the functioning of the Ministry of Education held in the Rajya Sabha. Education budget has increased and the national education policy is bringing a new revolution in the education sector, says the government. Opposition questions the government's intent. And every household to benefit by rupees 15 lakh over 25 years under Pradhan Mantri Surya Ghar Bijli Yojana, stresses Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi in the Rajya Sabha. Health Minister announces goal of establishing Cancer Day Care Center in all districts across the country in the next 3 years. News now in detail. Lok Sabha on Tuesday passed the supplementary demands second batch for 2024-25. Replying to the discussion on the supplementary demands for grants second batch for 2024-25, demands for excess grants for 21-22, along with general discussion on the budget for the state of Manipur for 25-26, Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted the efforts made by the government. Let us listen into an excerpt from her reply. What is more important is advanced redemption of high-cost loans, buyback of the G6. For that, 85,159 crores. Essentially, we are removing the high-cost debt from our shoulders by advanced redemption in those debts. So, it's already gone out. The paying for high-cost loans has already happened. So, as a result, in fact, I'm glad to say to this House, I'm sure very many members would have noticed, because we've done this redemption, the borrowing rates for government have all come down. It can be noticed that if market borrowings were to be taken care of, the Government of India borrowings have come down. And I'm sure as a result, when states go to the market to raise their bonds, their rates also will be far lesser. Let us now listen few excerpts from the general discussion on the supplementary demands for grants and the Manipur budget. 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का मणिपुर है, 38 लाख लोग रहता है। मणिपुर में चोराचांदपुर कहाँ है, इंफॉल कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, कितना नेशनल हाईवे है, मणिपुर में पहला रेलवे स्टेशन किसने बनाया है, मैं मणिपुर को इतने कम्युनिकेशन के साथ किसने जोड़ा है, मणिपुर के 3 नेशनल हाईवे को किसने बनाया है, चोराचांदपुर का पहला नेशनल हाईवे वो किसने बनाया है। इस सब का जवाब कांग्रेस के पास है क्या? मणिपुर में लंबे समय कांग्रेस का सरकार है। चोराचांदपुर में जो कुकीस एरिया है, एक नेशनल हाईवे माननीय अध्यक्ष जी नहीं रहे, वो भी नितिन गडकरी जी को जाके ही खड़ा होके करना पड़ा। हाईवे का चेहरा हमारे ट्राइबल लोग नहीं देख पा रहे थे चोराचांदपुर में। भारत एक ऐसे विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो पूरे विश्व के लिए स्मरणीय है। आज की तारीख में विश्व की वैश्विक परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। आज टैरिफ वॉर चल रही है, आज पर्यावरण बहुत गहन चिंता हो रही है, आज युद्ध भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में हमारे देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज की तारीख जब विश्व की औसतन जीडीपी की बढ़त 3.2% है, हम लोग 6.5% तक बढ़ रहे हैं। चीन भी
करीब 4.5% सीमित हो गया है और इसमें भी मैं समझता हूं कृत्रिम सिमुलेशन की एक आभा लग रही है। ये लोग श्रमिक यानी गरीब टी गार्डन वर्करों का जमीन खा गए। टी गार्डन में काम करने वाले 5 लाख से ज्यादा आदिवासियों के बोनस का पैसा भी ये खा गए। सिंकोना बगान जो अंग्रेज ने जो है प्लांटेशन के लिए लगाया था, जहां मेडिसिन बनते थे, वो पूरा तरह जो है टीएमसी सरकार खा गई। ये लोग चिट फंड का घोटाला और उसका पैसा भी खाते हैं। टीचर्स अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट का पैसा भी खा जाते हैं। नदी बालू खा गए और हमारे जंगल भी ये लोग खा गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जल जीवन मिशन का पानी ये लोग पी गए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का पैसा ये लोग खा गए। और इतना ही नहीं, मनरेगा का पैसा जो पश्चिम बंगाल की जनता को भेजा था, इन्होंने बांग्लादेशियों को दे दिया। At the start of the simultaneous discussion on supplementary demands for grants, second batch for 2024-25, along with the budget of the state of Manipur for 25-26, Finance Minister Nirmala Sitharaman reacted to a comment made by Congress leader Gaurav Gogoi regarding the Prime Minister. Let us listen in. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मान जनक language. How many times has the prime minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the honorable member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Earlier, the proceedings in the Lok Sabha began with a question hour. Replying to a query on rural job seekers under MGNREGS, the Minister of State for Rural Development, Kamlesh Paswan, provided the reasons for delay in release of funds for West Bengal under this scheme. ये बार बार प्रश्न उठता है, पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई और जब टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं Responding to a question on PM Kisan Samman Nidhi scheme, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said that direct benefit transfer has eliminated the scope of corruption since the Modi government came into power. He also assured that any eligible beneficiary left out of PM Kisan Samman Nidhi scheme could still be added. एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है, तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये KYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए।
माननीय सदस्य ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हों और वो पात्र पाया जाएगा EKYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। In legislative business, MOS for Home Affairs Nityanand Rai introduced the Immigration and Foreigners Bill 2025 on behalf of Home Minister Amit Shah. The bill is to confer upon the central government certain powers to provide for requirement of passports or other travel documents in respect of persons entering into and exiting from India. मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करूं। In the 0 hour that followed, members raised matters of urgent public importance. Let us listen into those issues. कपिल वस्तु जहां 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध रहे हों, और सभापति जी सुन लीजिए कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। हेनसांग फाहियान की यात्राओं में इसका उल्लेख है कि कपिल वस्तु एक गौतम बुद्ध के उस आध्यात्मिक केंद्र और बौद्ध धर्म के उस केंद्र के रूप में एक सेंटर था और आज उसके विकास की ज़रूरत है। और जहाँ पे मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कि पूरी दुनिया के जब बौद्ध धर्म के लोग, मानने वाले लोग सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, कपिल वस्तु आते हैं, कपिल वस्तु को आज कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे इतनी बर्फ़बारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है और वहाँ पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है। उसके साथ ही ट्रांसफार्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है। थोड़ी बर्फ़बारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। इन एरियाज़ में पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन है, और उसके साथ ही जो है दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दे शुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन दैट। In the Rajya Sabha, discussion on the functioning of the Ministry of Education was held on Tuesday, where the government highlighted the increase in the education budget and emphasized that the national education policy is bringing a new revolution in the education sector. The opposition, on the other hand, questioned the government's intent, raising concerns over its implementation and impact. Let us listen into some excerpts from the discussion and the reply of the Education Minister, Dharmendra Pradhan. IIT, IIM, IIMS की संख्या बढ़ाई गई। भारत में 23 विश्वविद्यालय से बनाए जो संस्थान आप क्वालिटी एमिनेंस के संस्थान हैं, वो 23 तरह से बनाए गए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज के युग के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास का काम किया गया। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए किया गया। इंजीनियरिंग का 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पहली बार इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। I want to impress upon the August House, the primary education really doesn't have universalization. Now, as per new educational policy, which aims at the universalization of education, 100% literacy, new innovations, holistic development of the entire student and the teachers in India. The two old universities was University of Mysore, Karnataka, University of Dharwad, need substantial grant from the center. I hope the Honorable Education Minister is here. Please take note of that. Don't allow these two universities unless and until your responsibility, as I already mentioned, concurrent subject. You must see that sufficient grant should be given without mixing politics. आज विश्व में हमारे बच्चे फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करके, माँ बाप की लाखों करोड़ों की पैसा खर्चा करके वहाँ जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे आते भी हैं वापस, बहुत सारे वहाँ रह जाते हैं। और वही उच्च शिक्षा की प्रणाली विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के साथ चाहे टाई अप करिए, चाहे उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ तैयार करिए, पर हमारे यहाँ शिक्षा बाहर जाकर प्राप्त करने के बजाय भीतर से ही हमको मिल जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी लहर के रूप में उभरी है। इस नीति ने शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं को समझते हुए एक समग्र समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखना नहीं है, उन्हें बहुविषयक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल में सशक्त बनाना है। एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का एकीकरण किया गया है। यह नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करती है। आज इस सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब एक ही स्ट्रोक में निर्णय किया, आने वाले 5 साल में हम करने वाले। हर एक टिंकरिंग लैब की आज की स्पेंडिंग शायद आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में एक टिंकरिंग लैब पे 20 लाख रुपया की स्पेंडिंग होगी। 10,000 है और 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब प्रोरोटा में आबादी के हिसाब से दिया जाएगा और चैलेंज रूट पे दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी हर एक प्रमुख स्थान पे एक हब एंड स्पोक मॉडल पे एक साइंस लैब, एक इनोवेशन सेंटर,
एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की कल्चर बन पाए, ये अटल टिंकरिंग लैब की प्रमुख उद्देश्य है। ये इस बजट की इस बार का प्रमुख योजना फ्यूज के लिए नहीं, योजना सभी के लिए है। हमारी एक दृष्टिकोण है भारत की सभ्यता को कैसे देखना। इस देश की जनता ने हमें स्वीकृति दिया है, हम उस सारे मुद्दे को लेकर जनता के पास गए थे, एक बार नहीं 3 बार गए हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम किसी भी विषय किसी के ऊपर लादना नहीं चाहेंगे, लेकिन भारतीयता के ऊपर हमारी एक नाज है, भारतीय भाषाओं के ऊपर हमारी नाज है। इसलिए इस बार की बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके ऊपर इंग्लिश भी है 23। भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कम से कम 1000 पाठ्य पुस्तक, 1000 पाठ्य पुस्तक 22 भाषाओं में। आज हमारे देश में नौजवानों को, अभी की एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले आने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको प्राथमिकता देना पड़ेगी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे। हमारी जो लैंडस्केप बन रहा है जॉब की, न्यू लैंडस्केप ऑफ जॉब के बारे में हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इसी बार में तो पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दायित्व दिया था, उसको मैं अगर याद करूं, एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन सस्टेनेबल सिटी, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पिछले बजट में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के दायित्व दिया गया था। इस बार एआई फॉर एजुकेशन 500 करोड़ रुपया की एक दायित्व अनुदान इस बार सरकार ने। Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi informed the Rajya Sabha during the question hour that the Pradhan Mantri Surya Ghar Bijli Yojana is promoting solar power and will be helpful in achieving the goal of zero carbon emission. Under this scheme, every household will benefit by rupees 15 lakh over 25 years, said the minister. Sir, as far as subsidy is concerned, sir, for rooftop he has asked. I would like to tell Honorable Minister through you, sir. Sorry, to the member through you, sir. We are providing 30,000 rupees. 30,000 rupees per kilowatt, and up to the maximum of 78,000 for 3 kilowatt, and it generates nearly about 300 to 360 units pan India if you consider average. By that, for that, apart from the 78,000 subsidy what we are providing, apart from that, they may have to give around 85,000 rupees they have to borrow from the bank. If at all entirely if they borrow from the bank also, their EMI burden will be 610 rupees. And electricity bill, which regularly they used to get pan India, we have assessed it, calculated it, surveyed it. On that basis, it is 1,875 electric bill, otherwise what he gets. And 1,875 electricity bill will become zero. 50% of the installations have already become zero out of 10 lakhs. And minus 610, that is the EMI burden, means net monthly benefit of 1,265 rupees. Net yearly monthly income. And net yearly income will be the 15,185. I am talking not zero bill. I am talking the income by which rooftop solar of Pradhan Mantri ने जो अनाउंस किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, इसमें जीरो बिल आएगा. उसके अलावा, and we are guaranteeing, and I am also thankful to Honorable Finance Minister, the highest budget has been provided in this budget also. Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda, stated that the government aims to establish cancer day care centers in all districts within the next 3 years. This year, such centers will be set up in 200 districts. डे कैंसर केयर सेंटर ये हर जिले में खोलेंगे
और 2025-26 में वी आर गोइंग टू ओपन 200 डे कैंसर केयर सेंटर, और अगले 3 वर्षों में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका सेंटर खोल देंगे। लाभ क्या होने वाला है? Now there are 22 All India Institute of Medical Sciences which have got a full-fledged oncology department. Along with that, all central hospitals are now full-fledged oncology department. हमारे झज्जर में 700 बेड का देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर, और जो दुनिया में जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज झज्जर में वो कैंसर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। ये कीमोथेरेपी से लेकर के जितनी भी थेरेपीज होती हैं, उसके बाद ज़िले में टाइम पर जो करने की ज़रूरत है वो डे केयर कैंसर सेंटर में उसका हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कैंसर के दृष्टि से इस काम को किया है। एक जो प्रश्न आपने BHU के बारे में पूछा, वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में सबसे पहले तो गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला गया है, और मुझे खुशी है कि उसकी OPD और IPD प्रैक्टिकली फुल है। इट इज़ इन फुल स्विंग दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर इज़ वर्किंग। लेकिन BHU में वहाँ एक सेंटिमेंट, और वो बहुत सही सेंटिमेंट है, कि BHU के कैंपस में हम कोई अलग से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग BHU के साथ एक MOU किया है, जिसमें हम वहाँ के BHU के मेडिकल कॉलेज को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। और इस बार बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री में BHU के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स पर लाने के लिए जो उसके पैमाने हैं उसका बजटिंग इस बार किया गया है, और अब SFC वहाँ के लोग करेंगे। वो जो फाइनेंस कमेटी वहाँ की बनाएगी, उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। That is all we have in House Highlights for the day. Keep watching Sunset TV. Goodbye and good night. To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.